कैन यू जस्ट एक्सप्लेन मी अ लिटिल बिट ऑन कि क्या टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं प्रोडक्ट्स, क्या टेक्नोलॉजी होता है होम ऑटोमेशन के अंदर? सो इफ यू कैन एक्सप्लेन दैट इट विल हेल्प मी अंडरस्टैंड. ठीक है. So basically home automation has two kind of technologies. Okay, one is wired, okay, and the other is wireless. Also, Irshad, ये home automation and smart homes, are these two different things? Yeah, it is the same thing. So it's one and the same thing. People like to call their home a smart home, and what they do inside the home is called home automation. So the home can be a smart home. My home is a smart home because why? I have put home automation products in that. So that products can be of different category and different types. Okay. Yeah. So coming back to this question, wherein I was explaining you the types of technologies in home automation as a broad concept. So we have wired home automation over here, okay, and then there is wireless home automation. Now to give you an explanation about wired home automation, what happens in wired home automation, it goes by its name. So there is a special type of cabling required, okay, for this automation to bring it into existence. And then there is a central controller, central base unit, you can call it, okay, wherein you have your main DB, you have a automation DB. What is DB? So DB is distribution box, जो आपके घर में लगता है, जहां से पावर स्विच बोर्ड्स को आती है वगैरह. Okay. तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपके घर में एक डीबी लगा हुआ रहता है, जिसको हम एमडीबी बोलते हैं, मेन डीबी बोलते हैं, ठीक है. और एक होता है फिर वायर्ड ऑटोमेशन में लगता है एक ऑटोमेशन का डीबी, और इस डीबी में लगते हैं एक्चुएटर्स, ठीक है. तो ये एक्चुएटर्स एक कंट्रोलर के थ्रू प्रोग्राम्ड होते हैं, ठीक है. तो जब भी आप कुछ भी सिग्नल दे रहे हो, पकड़ लो ये आपका रूम है, इस रूम में 4 लाइट्स है, जो भी है, तो आप जब सिग्नल देते हो तो ये कंट्रोलर को इनेक्ट होता है और ये कंट्रोलर से जाता है आपके एक्चुएटर को, और फिर वो इनेक्ट करता है पूरा सीन. सो दिस इज व्हाट इज इन अ प्रिसाइजली दिस इज व्हाट इज वायर्ड ऑटोमेशन. सो वायर्ड ऑटोमेशन का सिर्फ प्रॉब्लम ये है या डिसएडवांटेज या शॉर्टकमिंग ये है कि इट रिक्वायर्स अ स्पेशल टाइप ऑफ केबलिंग, ओके, देन इट इज अ कॉस्टली सिस्टम. Okay. So as you explained that it requires a special type of cabling. तो so पूरे घर का या ऑफिस का या होटल का whatever solutions you have, so special type of cabling, that means कि पूरा वायरिंग रीवायर करना पड़ेगा. Okay. तो वायर्ड ऑटोमेशन में क्या होता है, आपका Cat 6 या KNX केबल लगता है, ठीक है, जो आपको डालना पड़ता है, ठीक है. Okay. So this cable they carry data, ठीक है, and then there is a power supply cable जो 2 अलग केबल जाता है, ठीक है. तो उस हिसाब से होता है वायर्ड ऑटोमेशन. तो वायर्ड ऑटोमेशन का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इट नीड्स टू बी डन इन अ प्री प्लान्ड वे, ठीक है. एंड अगेन इट्स अ कॉस्ट इंटेंसिव सिस्टम, इट्स अ लेबर इंटेंसिव एंड अ टेक इंटेंसिव सिस्टम, इट हैज ह्यूज एएमसी कॉस्ट. सो दीस आर द peculiar downside of wired automation. That is the reason wired automation is getting replaced very aggressively with the wireless products. Okay. Though there are certain advantages with wired automation with respect to the products, like I'll explain you now. In this you can achieve DALI dimming, okay. So DALI digital addressable lighting interface. तो इसके अंदर होता क्या है, पकड़ लो 50 लाइट आपकी लगी है, एक ही सर्किट पर लगी है, पकड़ लो, ठीक है, सब कुछ एक ही स्विच पर जाके लगी है. तो इसके अंदर से आप चूज कर सकते हो कि मुझे पहली लाइट चालू चाहिए, 44th चालू चाहिए और 50th चालू चाहिए. तो DALI dimming is possible through wired, but there are products which are getting developed in this industry which are soon becoming wireless, and they can be operated through Wi-Fi mesh or through Bluetooth directly. Okay. So that is the thing. So wired का यही है कि wired automation, it takes time to execute. It is a very cost intensive process. It requires huge amount of changes into your current infrastructure. It is a tech dependent and a labor dependent product, and you cannot upscale or descale it. That's the challenge. Maybe you have a slim chance to upscale it, but descale तो आप कर ही नहीं सकते कि आपको कल लगा कि नहीं भाई ये मेरे को निकालना है और नॉर्मल स्विच बोर्ड लगाना है, पॉसिबल नहीं है, भूल जाओ. वो आपको केबलिंग करके वो वापस से प्रोविजन करके आपको सब कुछ करना पड़ेगा. So that is the thing. Okay. And what is wireless? So wireless, it goes by its name. Wireless का मतलब ये नहीं कि आपको वायर ही नहीं लगेगा, वायर लगने वाला है, बट एग्जिस्टिंग वायरिंग जो है आपके घर में, जो मेरे और आपके घर में लगी है, तो एग्जिस्टिंग सेटअप में इसका काम हो जाता है, ठीक है.
अब इसके अंदर क्या है कि आपको कोई वायरिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है, पहले तो नो नीड टू चेंज केबलिंग, ठीक है। उसके बाद नो नीड टू चेंज योर करंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, कुछ चेंज नहीं है, डीबी वगैरह कुछ नहीं लगेगा, सेम एग्जिस्टिंग डीबी है। हम सब आएंगे, हम आपके स्विच बोर्ड लेवल पर काम करेंगे। जो आपका स्विच बोर्ड लगा है, या तो हम उसको चेंज करेंगे, या उसके पीछे कुछ डालेंगे, या उसके अंदर कुछ डालेंगे, जो भी है वो सब स्विच बोर्ड लेवल पर होगा। तो अगर आपको एक 2 BHK वायर्ड में ऑटोमेट कराना है, तो इसको इंस्टॉलेशन से लेकर सेटअप तक, ठीक है, इसको लगभग 1 से 2 दिन लग सकते हैं, वेरएज ये 2 घंटे का काम है। इंटरेस्टिंग। हाँ, सो इसके अंदर क्या है, आपको फ्रीडम मिलता है। इसके अंदर आप कल आपको चाहिए, आप अपस्केल कर सकते हो कि नहीं भाई मुझे और चीजें लगानी है। कल आपको चाहिए कि नहीं नहीं मुझे निकाल के नॉर्मल लगाना है, इमीडिएटली निकालो वो स्विच बोर्ड और नॉर्मल लगा लो, या उसके पीछे जो लगा है वो निकालो, नॉर्मल स्विच बोर्ड आपका वैसा ही है। ओके।